भगवते वासुदेवाय। So we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 10th chapter. We are starting the new chapter, Departure of Lord Krishna for Dwarka. So अगर हम लोग देखें तो लास्ट लास्ट चैप्टर में we saw the amazing pastime of passing away of Bhishma Dev. So that was one of the most amazing chapters. The only thing is, अगर उस चैप्टर को कोई नॉर्मली पढ़ ले विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ भीष्म देव, देन दैट लास्ट चैप्टर डिडंट मेक एनी सेंस. लेकिन जब हम पढ़ते हैं हु वाज भीष्म देव, लाइक व्हाट काइंड ऑफ पावरफुल पर्सनालिटी ही वाज and what he was capable of doing, and then we saw his passing away and he was a pure devotee of the Lord, then we relished that last chapter. So now what's happening is, just from there सब कुछ हो गया है. Now Bhishma Dev passed away, everything is all sorted. Yudhishthir Maharaj is the king. Now Krishna is leaving for Dwaraka. Okay, and we'll start with the text 1. So now Shaunak Adi, so अभी तक शौनक आदि ऋषि सुन रहे थे ना, तो सूत गोस्वामी उनको बता रहे थे सारी की सारी स्टोरी. Now शौनक, once after finishing that pastime of Bhishma Dev, now they can ask a question. Very amazing question. बहुत सारी तरीके से इसको इंटरप्रेट करा जा सकता है इस क्वेश्चन को. सो विल रीड. शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्प्रद आतितायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवत्त किमिकार्षि तत्तः. शौनक उवाच हत्वा हत्वा स्वरिक्तस्पर्ध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवत्त किमिकारषि तत्. कोई पढ़ेगा? somebody wants to read the translation? Oh, Yes, Prabhu, I can read. Hare Krishna. please read. Shaunak Muni asked, after killing his enemies who desired to usurp his rightful inheritance, how did the greatest of all religious men, Maharaj Yudhishthira, assisted by his brothers, rule his subjects? Surely he could not freely enjoy his kingdom with unrestricted consciousness. Purport, Prabhu? Yes. Maharaj Yudhishthira was the greatest of all men of religion. Thus, he was not at all inclined to fight with his cousins for the sake of enjoying the kingdom. He fought for the right cause because the kingdom of Hastinapur was the rightful inheritance and his cousins wanted to usurp it for themselves. He fought, therefore, for the right cause under the guidance of Lord Shri Krishna. But he couldn't enjoy the result of his victory because his cousins were all killed in the fight. He therefore ruled over the kingdom as a matter of duty, assisted by his younger brothers. The inquiry was important for Shaunika Rishi, who wanted to know about the behavior of Maharaj Yudhishthira when he was at ease to enjoy the kingdom. Hare Krishna. Hare Krishna. So now Shaunakadi, they're asking this question. Imagine, they say hatva, hatva का मतलब होता है मार देना, मतलब खत्म कर देना, है ना. स्वरिक्त, है ना. स्वरिक्ता का मतलब होता है कि स्वरिक्ता का मतलब होता है कि हाँ, जो हमारी जो है वो है, क्या बोलते हैं, हेरिटेंस है, वो हमें कैसे मिलेगी, वो हेरिटेंस की बात हो रही है. ठीक है. स्पर्धा, है ना. स्पर्धा का मतलब होता है कि खा जाना, मतलब उसको खा जाना, मतलब हथिया लेना. आतताई, नो आतताई, हम लोगों ने शायद लास्ट लास्ट ना, नॉट लास्ट चैप्टर, द चैप्टर बिफोर हम लोगों ने देखा था आतताई क्या होते हैं. आप लोगों को किसी को याद है? देर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आतताईज आर देयर? भगवत गीता में भी आता है. There were six kind of That's adversaries. correct. That's correct. What are they? Who plunder riches, who Uh-huh. kidnap the wife, Yeah. who set the fire, Yeah. who killed अभी प्रभु अभी तो एग्जाम दिया. Uh-huh. I just forgot. Poison, Yes. who give poison, and who kidnap one's wife, who plunder riches, who kidnap one's wife. Four हो गया ना. तो who attack with the deadly weapons. That's correct. I think one is left. No? Land. Take the land. Land.
Who plunder rich? अच्छा लैंड बोला हाँ, तुमने. रिचेस का लैंड. मतलब होता है प्लंडर्स, मतलब वेल्थ, मतलब पैसा. ओके And ओके. another one लैंड is बैग. land. ओके ओके. So there are six kind of atatais हमारे इसमें बताया गया है. ये जो atatais होते हैं, like हमारे में we are a very non violent religion, है ना. In the sense हमारा जो सनातन धर्म है, it is extremely non violent. ठीक है. But it is said if there are these six तरह के जो आतताई हैं, you can actually kill them. You are allowed to kill these kind of आतताई, है ना. वो धर्म के विरुद्ध नहीं है, उसको उसको वायलेंस में नहीं गिना जाता है. उसको एक्चुअली आतताइयों को मारना इज एक्चुअली अ सिंबल, अ साइन ऑफ, actually it's a sign of compassion, because when you kill these atatai, you are stopping them from giving misery to others. Also, you're stopping them from incurring more karma so that they don't, you know, rot in hell more. So, killing these atatais is actually not an act of violence, it is actually an act of compassion. Very, very interesting. Like, अगर आप ये चीज किसी को बताओ, the people who don't understand, Srimad Bhagavatam, they will say, wow, what kind of, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, what are you reading? Like, you're talking about killing people who are doing this. देखो ये छह तरह के आता था, ये इसमें कलयुग में they are very common. You see brother is taking, other brother's land. So, the one person is taking another person's woman. People are burning, for insurance money. ठीक है. And people are like, अभी देखो वहां पर killing with weapons, attacking with weapons. आपने देखा अभी क्या हो रहा है वहां पर, है ना. पूरा हमारे वर्ल्ड में कितनी सारी जगह राइट नाउ इतना डिसरप्शन हो रहा है. अभी देखो यहाँ पर बांग्लादेश में व्हाटएवर इज हैपनिंग. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग, एंड व्हाई दीज पीपल आर लाइक, इतनी सारी चीजें हो रही है, इसका मतलब सबको मार देना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम इट इज ट्रू. हाउएवर, ये जो छह आतताई बताए हैं, दीज आतताईज आर वीक, आई मीन इनको मारने में देर इज नो पाप. ठीक है. जिस लेकिन इनको कौन मार सकता है? द पर्सन हु इज ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ धर्मा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट माई धर्मा टू गिव जजमेंट, है ना. इट्स नॉट माई धर्मा टू गिव पनिशमेंट्स. माई धर्मा इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ एज अ सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, माई धर्मा इज टू रिपोर्ट इट, नॉट टू किल. दैट्स नॉट माई धर्मा, है ना. लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है, उसमें इट इज अलाउड एंड दैट इज वाई शौनक आदि ऋषि स्टार्ट ही कैसे कर रहे हैं. आप देखो क्या करा है इन्होंने. कह रहे हैं कि आफ्टर किलिंग द पीपल, आफ्टर किलिंग द पीपल, दे आर ट्राइंग टू टेक योर हेरिटेंस, है ना. आतताई नो में युधिष्ठिरो धर्म भृताम वरिष्ठ. युधिष्ठिर कौन है? ही इज वन हु फॉलोज धर्म वरिष्ठ. वरिष्ठ का क्या मतलब होता है? ग्रेटेस्ट. ही, बिकॉज ही इज धर्मराज, ऑब्वियसली वी नो ही इज धर्मराज. सो ही सेइंग कि इसको मारने के बाद वो युधिष्ठिर जो धर्म का वन ऑफ द मोस्ट, ही इज ए सिंबल ऑफ धर्म. सहानुजय, सह अनुजय, अनुज का मतलब होता है छोटे भाई. अपने छोटे भाइयों के साथ प्रत्यय प्रत्यवरुद्ध. प्रत्यवरुद्ध का मतलब होता है उसको रोकना, है ना. क्या क्या रोकना? भोजन, भोजन. क्या हुआ? बिकॉज ये अपने भाइयों के साथ उसने क्या करा? भोजन ही खाना छोड़ दिया. मतलब उन्होंने, क्या नाम है, अपने युधिष्ठिर महाराज ने भोजन खाना छोड़ दिया अपने भाइयों के साथ. कथम प्रवत्त किम कार्यशी तत्, है ना. कथम प्रवत्त, उसके कथम का मतलब कैसे, है ना. प्रवत्त, कैसे एंगेज करा उनको. किम कार्यशीत, एग्जीक्यूटेड, तथा उसके बाद उन्होंने क्या करा, मतलब कैसे रहे वो. अब ये इतना अमेजिंग क्वेश्चन है. राधानाथ स्वामी महाराज का एक लेक्चर है इसी पे, है ना, इसी श्लोक पे. आई रियली वांट यू टू, मैं वो वाला जो उनका जो टेक था उसमें से वो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इट इज वेरी वेरी, बहुत ही ज्यादा डीप है वो. ये जो स्वरित स्पर्ध वाला है ना, ये इसका उन्होंने
इतना सारा वो दिया है, 4 या 5 अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, विच इज वेरी वेरी डीप, है ना। अलग अलग उनकी लेके कमेंट्रीज लेके। आई एम नॉट गोना गो इनटू दैट, आप लोग प्लीज उसको देख सकते हो तो देखो। इट इज एन अमेजिंग लेक्चर बाय हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज। तो वो पूरी उसमें पूरी पूरी की पूरी क्लास में राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे हैं ही डिड नॉट डिस्कस एनीथिंग, ही वाज ट्राइंग टू कन्वे, डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन। शौनक जो शौनक आदि ऋषि हैं, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये करो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ जाना है क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्यों पूछ रहे हैं, देन द होल चैप्टर विल मेक अ लॉट मोर सेंस, है ना। तो जो इनकी छोटी छोटी निटी ग्रिटी डिटेल्स हैं उसमें नहीं जाएंगे, बट वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इट्स अ वेरी 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 एक्सेप्शनली पोटेंट क्वेश्चन, वेरी डीप क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में शौनक आदि ऋषि न सिर्फ युधिष्ठिर महाराज और पांडवों की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि ये भी पूछ रहे हैं कि हाउ अ पर्सन हु इज धर्मराज शुड एक्ट, और a person who wants to obey the dharma should act when they are going through this। पहले क्यों कैसे क्या कर रहे हैं वो लोग, है ना। और इसमें एक और चीज बताई है उन्होंने क्वेश्चन में, एक और बोला है, उनको डिक्लेयर करा है कि वो आतताई थे, कौरव आतताई थे, और जानबूझ के वो लेना चाहते थे। शौनक आदि ऋषियों ने पूरा सुन लिया, अभी तक उनको समझ में आ गया। हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है कि युधिष्ठिर महाराज वाज क्राइंग कि यार व्हाई डिड आई, मतलब ही वाज कर्सिंग हिमसेल्फ, ही सेड मेरी मेरी मेरे लालच की वजह से सो मेनी पीपल डाइड। आपको पता है 640 मिलियन पीपल डाइड इन महाभारत, 640 मिलियन। प्रभु जी, उसमें तो ऐसा नहीं बताया कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। मैंने हाँ भी पूछो यही पूछो। सुना है 640 मिलियंस, बट वैसे देखने चाहे तो ऐसा नहीं बोला गया है कि 18 अक्षौणी सेना थी इन टोटल, और हाँ उनका भी काउंटिंग करते तो आई थिंक वी नॉट रीचेस अराउंड 60 मिलियंस इवन, आई गेस। नहीं तो नहीं, ये हाँ ये एक्चुअली मैंने ना, मेरे को भी इसमें कंफ्यूजन था, लेकिन अपने हिज होलीनेस केशव स्वामी महाराज का एक लेक्चर मैंने आज ही सुना, आज ही सुबह सुन रहा था मैं ऐसी, व्हेन आई वाज गोइंग टू वर्क। उसमें मैंने उन्होंने क्लियरली बोला, एंड ही वाज एक्चुअली एड्रेसिंग लॉट ऑफ वेस्टर्न ऑडियंस इन जर्मनी, जर्मनी का कोई लेक्चर है उनका। एंड ही एक्चुअली 640 से ज्यादा, उन्होंने एग्जैक्ट नंबर बोला था, वो नंबर नहीं लिखा था, लेकिन मुझे 640 याद रह गया। बट 18 अक्षौणी सेना है, उसमें कितने वो होते हैं एक्चुअली, दो पैदल जो होते हैं ना, जो पैदल जो थे, उसमें हम लोगों ने जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा था उसमें हमारी कैलकुलेशन की मिस्टेक है जहां तक मुझे पता है। तो हम लोग जो पैदल है ना, उनको उनका जो नंबर है वो हम लोग बहुत कम गिन रहे थे, जब हम लोगों ने व्हेन वी डिड ना 6.3 और समथिंग 63 मिलियन हुए टोटल मिला के, लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट 63 मिलियन, 640 मिलियन पीपल डाइड। तो वो सो खैर उसका, हाँ यानी उसमें लिखने में गड़बड़ हुई है ऐसा? लिखने में नहीं, हमारे इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ हुई है। हाँ मतलब यू राइट, हमारे हम लोगों ने जब उसको जो हम लोग के जो पैदल पढ़े थे ना हमें, इट इज एक्चुअली टाइम्स बाय 10 और टाइम्स बाय 100, ऐसा कुछ है, द थिंग्स ओके वी मेड मिस्टेक। तो ओके। इसलिए मैं भी बहुत कंफ्यूज था, बट ही एक्चुअली क्लियरली सेड 640 मिलियन, इट्स क्योंकि ह्यूज। क्योंकि क्या होता है कि कुछ टाइम पर भक्ति क्लास में कुछ लोग पूछते हैं कि 18 अक्षर है ना, तो फिर हो ही नहीं 60 पूरे। मिलियन भी नहीं हुए तो 640 कहाँ से हो गए? हाँ 640 मिलियन, बिकॉज हम लोगों ने जो अक्षौणी सेना में जो पैदल गिने थे वो कम थे, बहुत कम, मतलब हंड्रेड्स या टेंस में, मतलब सपोज 1 लाख थे, हाँ, 10 लाख थे, तो हम लोग 1 ही लाख गिन रहे थे उसको, ऐसा था कुछ, है ना। सो वो I'll confirm more and I'll let you know, ठीक है ब्रो। यस। ओके। सो नाउ इतने लोग वहां मर गए, नाउ महाराज युधिष्ठिर वॉज रियली सैड, है ना। नाउ ये सारा सुन चुके हैं, शौनक आदि सुन रहे हैं, हम लोग ने भी सुना लास्ट चैप्टर में, ही वॉज रियली, सो नाउ ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना एक और एक अजम्पशन है, अगर आप देखो देर इज एन अजम्पशन इन दिस क्वेश्चन। क्या अजम्पशन है? श्योरली ही कुड नॉट फ्रीली एंजॉय द किंगडम विद अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्सेशन। श्योरली मतलब ऐसा नहीं बोला कि आप हमें बताओ उनके साथ क्या हो रहा है, बोलो श्योरली हो ही नहीं सकता कि वो उस किंगडम को एंजॉय करें। तो देर इज एन अजम्पशन, एंड दिस इज अ गुड अजम्पशन, बिकॉज ही इज ए प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड,
है ना. And because he's a pure devotee of the Lord, it is true that he was not very happy. Definitely not very happy. He was actually very sad. But he's saying that surely he could not have really enjoyed the kingdom. Now they want to know more in there, more in detail. ठीक है, we'll discuss next वाले श्लोक में आ जाएगा क्या है. Let's concentrate on what is the mood in here. Like हम लोग अभी इनका तो मूड समझ में आ गया हमें. कल का शौनक आदि किस मूड में पूछ रहे हैं क्वेश्चन, बिकॉज दे वांट टू हियर मोर अबाउट द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. और कॉन्टेक्स्ट उनको पता है सारा का सारा. ना शीला प्रभुपाद कैसे लेके जाते हैं. लुक एट दिस, द फर्स्ट लाइन ही सेज, महाराज युधिष्ठिर वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मैन ऑफ ऑल रिलीजन. है ना, ऑल मैन ऑफ द रिलीजन, ऑल मैन ऑफ रिलीजन. नाउ इसमें ये नहीं लिखा है रिलीजन का मतलब यहाँ पर वो नहीं है अपना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो वाला नहीं है. रिलीजन इसमें क्या है, रिलीजन इन दिस मीन्स धर्म. धर्म. एंड हम लोग लास्ट भक्ति कक्षा में बात कर रहे थे, दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस दिस धर्म. द धर्म ऑफ शुगर इज टू बी स्वीट. है ना, धर्म ऑफ वाटर इज टू फ्लो. है ना, धर्म ऑफ नमक इज टू बी सॉल्टी. है ना, सिमिलरली धर्म ऑफ अ सोल इज टू बी जीवेरे स्वरूप होय कृष्णेरे नित्य दास, इज टू बी अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा और इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा. कृष्णेरे नित्य दास. सो नाउ रिलीजन इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आ रहा है, रिलीजन मीन्स anybody who is living a धार्मिक लाइफ. है ना, अब धार्मिक और रिचुअलिस्टिक में बहुत डिफरेंस होता है. रिचुअलिस्टिक का क्या मतलब होता है कि भाई लाइक फॉर एग्जांपल समबडी इज डूइंग आरती इन द मॉर्निंग. है ना, अब आरती कर रहा है लेकिन दिमाग में चल रहा है आज मेरे बॉस ने अगर मुझे दे दिया ना ये कोई काम तो आई विल रिजाइन. है ना, यू आर डूइंग आरती बट यू आर थिंकिंग ऑफ योर बॉस. दैट इज रिचुअल. But in here, he's talking about the actually person who is inherently who inherently understand what is his dharma. है ना, धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना. जो धर्म के विहीन है वो कौन है, पशु है. तो यहां पर इस महाराज युधिष्ठिर सिर्फ ह्यूमन होने वाली बात नहीं कर रहे हैं. ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मैन ऑफ रिलीजन. जितने भी धार्मिक लोग हैं, धार्मिक मतलब दे आर एक्चुअली इन देयर हार्ट they understand what is the purpose of this life and they are fully engrossed in doing that purpose and fulfilling that purpose. Those people are called men of religion. धर्म धार्मिक जिसको कहते हैं, धार्मिक लोग. अब शीला प्रभुपाद यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मैन, विच इज ट्रू बिकॉज who was Yudhishthir Maharaj? He was Dharmaraj. He was actually Yamraj, Dharmaraj. So obviously he has to be. ठीक है. Now Srila Prabhupada next line में क्या बोलते हैं, thus he was not at all inclined to fight with his cousins for the sake of enjoying the kingdom. अब कितनी बार होता है लोग बोलते हैं यार तुम्हारी जो भगवत गीता इज फुल ऑफ फाइटिंग मैन. मैं इसलिए भगवत गीता किसी को नहीं देता हूँ बिकॉज जिसको दूंगा उसके घर में फाइटिंग हो जाएगी. बिकॉज भगवत गीता इज फाइटिंग बुक. बट भगवत गीता का ट्रांसलेशन क्या होता है, सॉन्ग ऑफ गॉड. इट्स नॉट सॉन्ग ऑफ वॉर. है ना, भगवद गीता, गीत का मतलब होता है song. It's a song. It's not a it's not song of God. It's not song of war or cry of war. है ना. So लोगों को इस मिसकंसेप्शन है कि ये तो इसलिए हम लोग भगवत गीता नहीं देंगे. बट वो जो फाइट थी ना, दैट फाइट वाज नॉट फॉर गेनिंग ऑल द everything for the sake of satisfying your sense gratification, like satisfying your senses. It was not an act of sense gratification. Right now whatever is happening you know in this world, most of it, actually not most of it, all of it is जो भी यहाँ पर बॉम्ब गिरा रहे हैं, वहां पर पैलेस्टाइन में ये हो रहा है, वहां पर गाजा में ये हो रहा है, बांग्लादेश में ये हो रहा है. ऑल ऑफ दिस थिंग्स इज नॉट, नो वन हैज एनी, nobody knows anything about dharma. They are only doing to satisfy their senses.
somebody thinks that, democracy on there is not good, America is feeding it, and all whatever is happening, it is a clash of ego. It has got no religion, um, no compassion at all. So, but when Yudhishthir Maharaj fought, he was fighting for the right cause. Now, why do we call something right? Why do we call something wrong? कोई बता सकता है? What are the things in terms of this context में? How do we know it is right? How do you know this is right? How do you know someone Yudhishthir Maharaj was right in fighting that war? किसने बोला हमें? कहाँ से पता चला हमें? How do we know? प्रभु जी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। So how, like for example, यहाँ पर बोल रहे हैं, शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज fought the war for the right cause. ठीक है? How do we know it's a right cause? How do we know that it's not a बिकॉज wrong? कृष्णा ने बताया था, Yes, actually, और ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी। that's correct. Because right or wrong, देखो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं. Right, something that is right for me may be wrong for someone else. ठीक है? Someone is winning a gold medal, and because someone is winning a gold medal, someone else has to win what? Silver medal. है ना? So who is right? Like, why is the person who is winning the gold medal can't sacrifice himself to give someone silver gold medal as well, and he becomes, he gets silver medal? Because हमारा जो right cause क्या होना चाहिए? To be compassionate, to make everyone, to make sure that people are really comfortable, they are happy, we don't become the cause of anyone's misery. Because you're getting first you're getting a gold medal, somebody is crying because they got silver medal, and there is one person who's crying because he's number 4, because he got gold, someone became 4 and they didn't get any medal and they're crying. So you are the cause of somebody else's crying. So how do I know what is right and what is wrong? And as Mitul Prabhu said, the only definition of right and wrong is it according to our God? ठीक है? भगवान, जो भगवान के हिसाब से सही है वही सही है, बाकी सब गलत है. अब हमें कैसे पता चला भगवान, हाउ डू वी नो if something is right according to God? How do we know that? Another question comes, doesn't it? हमें पता चल गया. हाँ, बोलो बोलो. प्रभु जी, based on scriptures, authentic scriptures, we know that what is right and what is wrong. That is correct, because scriptures actually clearly state what God wants. आपको पता है काफी सारे धर्मों में ये क्लियर ही नहीं है कि भगवान को चाहिए क्या. ठीक है? बहुत सारी जगह, काफी सारे दूसरे धर्म हैं जिसमें ये पता ही नहीं है लोगों को कि एग्जैक्टली क्या चाहिए उनको. है ना? अब फॉर एग्जाम्पल, मैंने सपोज मैं नारायण को बोलता हूँ, नारायण बेटा आपको ये करना है और ये नहीं करना है. ठीक है? तो ये अगर मैं लिस्ट देने लूंगा, ये करो और ये ना करो, तो कितनी लंबी लिस्ट हो जाएगी. तो मैं उसको बोलूंगा सुबह जल्दी उठो, फिर आप ब्रश करो, फिर ये करो, फिर वो करो. खूब सारी, पूरे दिन में उसको जो मुझे करवाना है वो मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा. फिर मैं ये भी लिखूंगा तुम्हें क्या नहीं करना है. ठीक है? नाउ अगर प्रॉब्लम क्या होती है कि नाउ एनीथिंग दैट इज आई हैव नॉट रिटन, देन हु विल चूज इट? फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीज नहीं लिखी है. अगर मैंने नारायण को बोला, नारायण यू हैव टू ऑलवेज डू द राइट थिंग, नारायण ने प्रॉमिस करा, अच्छा ठीक है पापा, मैं आप जो बोलोगे, जो लिख के दे दोगे मुझे वैसा ही करूंगा, और जो लिख के दे दोगे मना करने के लिए वो मैं नहीं करूंगा. तो मैंने एक इतनी मोटी बुक बना दी. ठीक है? इतनी मोटी बुक बना दी उसके लिए. लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसने उस बुक में हर चीज नहीं मिलेगी आपको. तो अगर उसमें से कोई ऐसी चीज है जो मैंने उसमें नहीं लिखी है, हाउ वुड ही नो वेदर दैट थिंग इज राइट और रॉन्ग? We are going deeper. प्रभु जी, थ्रू स्पिरिचुअल Hold on, मास्टर। hold on, hold on, hold on, Mitul Prabhu. Let someone else answer. Let's see. I was about to say the same, Prabhuji, क्या क्या that क्या? spiritual master से आप जान सकते हो, अपने गुरु से. Okay, that's a very good point. That's really good. Yeah. What else?
एंड हर हमारा कॉन्शियस हमको बताएगा ना प्रभु जी, इफ वी आर एलिवेटेड इनफ टू नो व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट through the scriptures or from our, like Krishna Mataji said, from our guru, our conscious will tell us, our intuition will tell us what is right and wrong. And Yeah. also on the other hand, another thing that I thought is, if it is not hurting somebody, like if it is not making somebody else's loss, then maybe that is the right thing. Good point. Very, very, very good point. Both, Ruchita Mataji, Mithul Prabhu. Mithul Prabhu, do you want to add something now? नहीं प्रभु जी, Okay. मुझे लगा स्पिरिचुअल मास्टर ही बता सकते हैं, क्योंकि अभी के कंटेक्स्ट में देखे जाए भगवत गीता, तो भगवत गीता काफी पुरानी है, लेकिन जिस तरीके से प्रभुपाद ने उसको जो परपट सारे बनाए हैं, तो वो अभी के कंटेक्स्ट के हिसाब से बनाए हैं, तो वेरी नाइस, तो उसकी वजह से हम ज्यादा समझ पा रहे हैं, यानी तो उसकी वजह से मैंने स्पिरिचुअल मास्टर बताया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक्चुअली one of the things that Srila Prabhupada said, है ना, Srila Prabhupada said, I cannot tell you, अपने one of the disciples को उन्होंने बोला, I cannot tell you everything that you need to do or you don't need to do. In order for you to understand, you have to read between the lines. How do you read between the lines? Is all of the answers that you have given is you do everything with context. ठीक है, क्या context है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर नारायण को इतनी मोटी बुक दे दी है लिख के कि भैया तेरे को ये करना है और ये नहीं करना है, ठीक है, अब वो जब वो बुक पढ़ रहा होगा तो वो सिर्फ वो ऐसा नहीं है कि अंधे के जैसे फॉलो करता रहेगा। ही नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे पिताजी का मूड क्या है, मेरे पापा का मूड क्या है, व्हाट इज इट लाइक, व्हाट इज समथिंग दैट ही लाइक्स, दैट व्हाट इज, व्हाई इज ही सेइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, एक तो चीज होती है एक तो चीज होती है एक तो पर्पस होता है और एक होता है डिटेल, है ना। सो हम लोगों को अपने गोल और पर्पस से नहीं हटना है बाकी डिटेल कुछ भी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वी शुड नॉट ईट मीट, ठीक है। Now, because you guys are very, like you're actually senior in bhakti, a little more senior than you were before, I can easily discuss this with you. हम लोगों को मीट नहीं खाना है, but is there an exception to this? क्या मैं मीट खा सकता हूँ? Is it possible for me to eat meat and still be dharmic? If yes, what is the what in what context? क्या होता है, किस केस में मैं मीट खा सकता हूँ और फिर भी आई विल बी ओके? The situation it is like जैसे प्रभुपाद जी ने मैं बोला है, अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है, इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट पॉसिबल, आप उसके बिना कर सकते हो भक्ति, आप कहीं ऐसी जगह प्रीच कर रहे हो देयर इज नो अदर ऑप्शन, इट हैज हैपेंड इन द पास्ट, but obviously you have to avoid it like as much as you can. Very nice. What if, so what, like for example, if I don't eat meat, है ना, for example, कहीं कुछ भी नहीं है खाने को और सिर्फ मीट है और मैंने कहा मेरे को नहीं खाना है, तो मैं मर गया, what's a problem in that? आप फिर आगे भक्ति कैसे लोगों को दे पाओगे ना, अगर आप ही नहीं रहते। Yes, beautiful. Because if in terms of my सेवा, अगर मेरी सेवा में, अगर मेरी भक्ति की प्रोग्रेस में कोई चीज आड़े आ रही है, तो भले ही कुछ भी हो, ठीक, भले ही वो कुछ भी हो, भले ही इफ आई हैव टू डू सम अनर्था in order for me to complete my sadhana or in order to complete my seva, I should do it. Like ab kaise? There is an example. What happened was, I don't know whether I think I've shared this with you guys few times before, but there was this Chaitanya Mahaprabhu's personal servant. He was serving Chaitanya Mahaprabhu, and Chaitanya Mahaprabhu दोपहर में खाना खा के he used to lie down, है ना, he used to lie down to sleep, है ना, and have a nap in the afternoon, siesta जिसको कहते हैं। He was napping. So one day what happened is, and while he was sleeping, उनका जो person servant था, he used to massage his feet, massage his hands and things like that. तो क्या हुआ, he, as soon as उन्होंने खाया वो लेट गए, but the way he, जैसे वो लेटे थे, उनका ना वो पूरा दरवाजे को घेर के लेटे थे। Now उनका पर्सनल सर्वेंट बाहर था कमरे के, so he has to come in. तो उसने क्या करा, उनके ऊपर जंप करके आया वो, किसी के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर आप कैसे गुरु के ऊपर से टाप के कैसे जा सकते हो, आप नहीं जा सकते, बट ही डिड इट।
एंड देन अंदर आ गया, एंड देन ही वाज मसाजिंग हिज फीट एंड एवरीथिंग। एंड फिर क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा लंबा सो जाते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा हो जाता है। तो उठते हैं तो देखा उनका सर्वेंट इधर ही बैठा है कमरे के अंदर। तो उन्होंने बोला, अरे तुमने खाना खा लिया, तुम प्रसादम ले लिया? उसने बोला, नहीं महाप्रभु मैंने अभी नहीं लिया है। तो बोले, क्यों नहीं लिया? बोले, नहीं नहीं, प्रसादम लेने के लिए मैं आपको कूद के नहीं जा सकता था ना आपके ऊपर से। तो उन्होंने बोला, अच्छा तुम तो बाहर थे, कूद के ही तो अंदर आए हो मेरे ऊपर से कूद के, तो फिर वापस जाने में क्या प्रॉब्लम थी, है ना? तो उसने बोला, जब मैं अंदर कूद के आ रहा था, माई पर्पज वॉज टू डू योर सेवा। जब मैं बाहर जाता तो माई पर्पज वॉज टू सेटिस्फाई माई ओन सेंसेस फॉर माई सेल्फ, एंड दैट इज वाई दैट इज अधर्मिक, दैट इज अधर्म. So did you see the amazing context in here? You can do anything if it is stopping you from doing your seva, then you can change it. है ना? Dharma is what? The only dharma is जिरे जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास. दास का क्या मतलब होता है? सेवा करना, सर्व करना. उस सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. एवरीथिंग एल्स इज ओके, एवरीथिंग एल्स इज ओके, है ना? और जैसे कई बार क्या होता था, शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स जाते थे वहां पर, है ना, दे यूज्ड टू गो टू उल्टी सीधी जगह पे, क्लब्स में, नाइट क्लब्स में, एवरीथिंग. एंड देन शिला प्रभुपाद उनको बोलते थे, अरे तुम कहाँ? तो बताते थे हम लोग वहां जा रहे हैं. तो कई बार तो शिला प्रभुपाद तो उनको पता ही होता है, कई बार शिला प्रभुपाद उनको बोलते थे, वेरी गुड वेरी गुड, सबको बचाओ सबको बचाओ. फिर कभी कभी वो बोलते थे, जा रहे हो वापस आ जाना, ऐसा नहीं कि वहीं लिपट जाओ तुम लोग, है ना, निपट नहीं आना, वहां पर आना वापस. तो कहने का मतलब ये था कि यू आर गोइंग देयर टू सर्व, बट मेक श्योर दैट यू डोंट लूज द पाथ, है ना. And because you guys are very matured, so I can tell you. So what happened is, there was one sannyasi. Srila Prabhupada gave him a sannyas order. He was a sannyasi, and then this sannyasi was preaching to one of the very prominent English. Um, I think she was a model or some very prominent lady in English in Britain, and he was preaching to him. A sannyasi was preaching to her, and then he fell in love with her, and he left sannyas. He left ISKCON. है ना? Srila Prabhupada, when he found out, you know what he did? He was so compassionate. उन्होंने उनको बुलाया और उस लेडी के साथ उनकी शादी कराई खुद ने. शिला प्रभुपाद ने मंत्र पढ़े. A sannyasi is not allowed to do fire sacrifice for, he is not allowed to touch fire for his food. He is not supposed to cook. He can only eat whatever is given to him. He is not supposed to any agni. कोई भी जो हवन होते हैं ना, यज्ञ, वो नहीं कर सकते वो, क्योंकि यज्ञ का मतलब होता है यू वांट समथिंग इन रिटर्न. तीसरा होता है कि यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ संस्कार, लाइक the vivaha sanskar or any kind of sanskar. Sannyasi is not allowed, because this is only for grahasthas and other ashrams. But Srila Prabhupada did it. Because why? Because his compassion for his disciples was more important. His mood was, his dharma was to save that person, even if he left sannyas. Sannyasi होने के बाद he got married and everything. But Srila Prabhupada gave him another chance. That is the compassion of Srila Prabhupada. And this is the mood we have to understand. If we don't understand this mood, we will misinterpret the purport that Srila Prabhupada is writing. तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? Yudhishthir Maharaj fought for the right cause, and we understood what is the right cause. Right cause is something which is the word of God. And where do we get the word of God? From scriptures. And how do you know? Because scriptures has written everything, but all the details. Like for example, should I use this Bluetooth headphones or not? हमारे शास्त्रों में तो लिखा ही नहीं है. How can I decide I should use this Bluetooth? Is through the mood. आप कुछ बोले मित्र प्रभु? How do we decide that? हाँ प्रभु जी, बताया गया ना, जो भी कृष्णा के लिए हो रहा है, कृष्णा के लिए हो रहा है, इस सेंटर में रहकर वो सारा कुछ यूज कर सकते हो. बिल्कुल सही, है ना इसको, है ना. तो ये सारी चीजें, ये मूड कैसे पता चला हमें? ये मूड हमें पता चला शिला प्रभुपाद से. शिला प्रभुपाद ने माइक्रोफोन यूज करा, है ना, डिक्टाफोन यूज करा, ऑल ऑफ दीज चीजें, ही थिंग्स, टाइपराइटर यूज करा. आई एम यूजिंग दिस, है ना. सो ये कहाँ से निकाला? दिस डिडक्शन कम फ्रॉम वेयर? इट केम फ्रॉम, आई नो दिस इज द राइट थिंग, दिस ब्लूटूथ, बिकॉज
I read between the lines based on the mood of Srila Prabhupada. ठीक है? So now he's saying he fought for the right cause because the kingdom of Hastinapur was his rightful inheritance. Rightful inheritance हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में देख लिया है. Why was this a rightful inheritance of uh, पांडवास? क्योंकि एक्चुअली बड़े तो धृतराष्ट्र थे, है ना? बट बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड, पांडु को दिया, पांडु महाराज ने वो करा. अब हुएवर इज द किंग, उनके जो बच्चे होते हैं दे आर एक्चुअली सपोज टू बी किंग के बेटे. जब धृतराष्ट्र ने अपना वो कर लिया ना, धृतराष्ट्र गॉट 100 किड्स, बट उनके 100 किड्स और पांडवों के 5 किड्स में से सबसे बड़ा कौन था? कोई बता सकता है? हु वाज द एल्डेस्ट इन द होल 105 किड्स? हु वाज द एल्डेस्ट? हु वाज इट? प्रभु जी वैसे देखना जाए तो युधिष्ठिर युधिष्ठिर महाराज थे, लेकिन युधिष्ठिर, उससे भी आगे चले जाए तो फिर कर्ण आएगा ना. कर्ण. हाँ, मैं भी आई वाज अबाउट टू से एग्जैक्टली द सेम थिंग. एक्चुअली Karna was the eldest, but Karna was not the eldest son of Pandu, है ना? Because Kunti Maharani actually did not, the one of the five उनके जो बच्चे थे उनमें से the kid is a kid only when you accept them as your kid, है ना? हमेशा से ये होता है कि if you accept them, same with disciples. If a guru accepts disciple only, then you are a disciple. Otherwise you can't be a disciple. Similarly parenthood में भी ऐसा होता था. If you, for example, हमारे शास्त्रों में नहीं, हमारे पुराने हिस्टोरिकल डेटा में कई बार दिखाया गया है, जिस बच्चे को एक फैमिली बेदखल कर देती है किसी भी रीजन से, दैट पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ दैट क्लैन और दैट इनहेरिटेंस, है ना? सिमिलरली कर्णा वॉज नॉट कंसिडर्ड, बट एक्चुअली युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल 105 किड्स, है ना? नाउ जब दुर्योधन को राजा बनाने की बात कब आई? जब पांडु अपने बच्चों को सबको लेके पांडु वहां चले गए, जंगल चले गए, तब उन्होंने धृतराष्ट्र को टेम्परेरी केयर टेकर बना लिया अंटिल द किड्स आर रेडी. कौन? विच किड्स? पांडव्स आर रेडी. बट पांडव्स, जो पांडव थे वो तो जंगल में थे. तो अब क्या हुआ, गुरुकुल में तो यही कौरव पढ़ रहे हैं. तो धृतराष्ट्र को लगा मेरा बेटा बनेगा किंग, क्योंकि मेरा बेटा, सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन है. बट वेन दे केम बैक एंड दे स्टार्टेड डूइंग द गुरुकुल एज वेल विद कौरव्स, देन वो तो बहुत ही अच्छे निकले, बहुत ही आगे निकले. देन ही स्टार्टेड बिकमिंग एनवियस. उससे पहले उनमें ज्यादा एनवी नहीं थी. एनवी थी पांडु को लेके, लेकिन अपने भतीजों को लेके उनमें कोई एनवी नहीं थी पहले. बट वेन ही उनके दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो गया था कि मेरा बेटा बन सकता है, देयर इज अ चांस माय सन कैन बिकम ए किंग, एंड दैट्स व्हेन ही इज एनवी बिकेम रियली, दैट एनवी ने उसको असली असली अंधा कर दिया था धृतराष्ट्र को, है ना? सो So, so Hastinapur's rightful inheritance, and his cousins wanted to usurp it for themselves. वो हमने देखा है ना? There are multiple times, like जब भी ऐसा कुछ हुआ है, दुर्योधन को पता था कि somehow or other I want to, पहले उनको लाक्षागृह में मारने की कोशिश करी, फिर उनको वनवास भिजवा दिया, फिर उसके बाद उनका जब वो उसमें थे, क्या बोलते हैं, इनकॉग्निटो थे, तो वहां पर उनकी वो करवा दी, उनको ढूंढने की कोशिश करी ताकि उनको वापस 14 साल के लिए भेज दिया जाए. वो वापस आ गए तो उनको सिर्फ हस्तिना वो दे दिया, क्या बोलते हैं, दूसरा कौन सा था? हस्तिनापुर, और दूसरा कौन सा था? इंद्रप्रस्थ, है ना? इंद्रप्रस्थ दे दिया. इंद्रप्रस्थ वाज लाइक ए डेजर्ट. फिर उन्होंने उसको भी इतना अच्छा बना दिया. फिर उसने बोला अरे वाह, ये तो अब ये मुझे चाहिए. एंड देन ऑल ऑफ दोस थिंग्स ही स्टार्टेड गेटिंग एनवियस एनवियस एनवियस, एंड ही वांटेड टू टेक एवरीथिंग. And that is the most critical thing that Srila Prabhupada wrote in there. अब देखो शिला प्रभुपाद ने सिर्फ ये लिखा है कि cousin wanted to usurp it, and because this is written in here, है ना, इन्हें यहाँ पर लिखा है, शिला प्रभुपाद सिर्फ इसका वो कर रहे हैं. लेकिन ये जो अपसर्प वाला है ना, डिजायर टू अपसर्प द राइटफुल इनहेरिटेंस, ये इसका क्या मतलब है? कि आप किसी की चीज हथियाने की कोशिश कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर सो ग्रीडी.
पांडवों ने उनसे सिर्फ 5 गांव मांग लिए थे यार, प्लीज 5 दे दो। ठीक है, अभी क्या हुआ, वेरी रिसेंट है ना, दिस इज वेरी रिसेंट। आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड एंड ही इज ऑब्वियसली हमारे इंडियन है, तो उसने महाभारत पढ़ी हुई है। He said, and it was a very common thing that we hear, but he said to me, he said, look at this, look at Pandavas. They fought, you know, they wanted to have 5 village, you know. um, why do they have to have 5 village? क्यों चाहिए थे उनको 5 village? They could have sat at home, क्या problem थी उनको? And I was like, what? I mean, when imagine somebody is asking you that question and you have like you have like 10 hours of lecture trying to come out of your mouth, like कि इसको बिठाओ मैं 10 घंटे समझाता हूँ कि why Pandav did what they did. It was really hard for me to break it down. तो फिर वो मुझे बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, पांडवों की गलती है। क्यों, क्या जरूरत थी उनको? कहते हमें एक ही गांव दे दी, क्या जरूरत है उनको राजा बनने की? लाइक व्हाई कांट दे जस्ट बी नॉर्मल पीपल? जरूरी है कि राजा बनना? And then imagine I had to tell him all. I now imagine thinking about this. Okay, somebody is asking you this question. You have to tell them because they're Kshatriya. Ab now you have to tell them what are the varnashram. You have to tell them what are the varnas, And now just telling them varna, they will say, "Tu to casteism kar raha hai na?" No, we have to tell them about sadgun, rajagun, tamogun. Then we have to. I have to tell them about all modes of material nature. Then I have to tell them what are the characteristics of these people. Then I have to tell them that varna or ashram is actually coming from Krishna. Krishna wants us to live in varna ashram, and then I have to tell them something which Srila Prabhupada did it for 50 60 years trying to tell. I have to tell this guy, and I've got like probably 20 minutes spare. I didn't know. I was so flabbergasted. I did not know what to do. मैं वहां पर बैठा था, and I was like, and he was saying like, कर दिया ना मैंने तेरे को ट्रम्प, है ना, इतनी भगवत गीता तूने पढ़ी है, कर दिया मैंने तेरे को ट्रम्प। मैं सोच रहा हूँ यार, ट्रम्प तो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं कैसे समझाऊं इतनी सारी चीजें? एंड देन आई टोल्ड हिम समथिंग, आई सेड, and then I remembered that um, there is a mention in Bhagavad Gita where not Bhagavad Gita, sorry, Mahabharat, where Vyasadev ji actually explains, like narrates something. He narrated how Krishna was feeling when he had to go and do the as a peace messenger, So I told this friend, I said that like Pandavas, they never wanted to have the kingdom. They were not greedy about the kingdom because they were Kshatriyas, and it is important. They were not, they were Kshatriyas, and it is their dharma, and they had to rule, and this is what they are born to rule. If they don't rule, then their whole life is wasted, and this is why they needed only one small village each, so that they don't have to, they can do their dharma and live peacefully. But Duryodhan got greedy, and that is the thing, when um, suppose you, and where does that come from? काम, there is a, सपोज मुझे किसी चीज की डिजायर है, मतलब लस्ट है। काम काम का मतलब होता है एनी अदर डिजायर अदर देन कृष्णा इज कॉल्ड लस्ट। इफ आई हैव लस्ट, यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन द लस्ट फुलफिल्स? अगर लस्ट थोड़ी पूरी हो जाती है तो क्या होता है? what happens, if one of my lust gets fulfilled, what happens? We become greedy. Yes, we become greedy. But Greedy. what happens if the lust is not fulfilled? Anger. Anger. We got angry. So ना, तो क्या होता है? The problem कहाँ हुई? प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम है लस्ट, है ना? सो क्या हुआ कि दुर्योधन को जब उन्होंने बोला ठीक है तुम सब कुछ ले लो, तुम्हें इंद्रप्रस्थ चाहिए, तुम ये भी ले लो, सब ले लो, हमें सिर्फ 5 गांव दे दो। अब उसका क्या डिजायर थी सब कुछ लेने की, अब उसको मिल गई। तो क्या आया उसको? उसको आया लोभ। बोले 5 गांव भी क्यों दूं? I am the supreme power in the whole. I want to be supreme power of the whole world. And because of that one desire, he did everything that is possible. He became that Atatai,
है ना, he became that Atatai which is supposed to be killed. Kauravas did all those six things. They tried to attack with weapons. They tried to insult their women. They tried to burn them. They tried to poison Bhima. They tried to take the wealth that जुए में है ना, and they tried to take the land, है ना, जो उनका वो था. They did all the six. So they deserve to be killed. Now what happens is, now the reason why Srila Prabhupada यहाँ पर बोल रहे हैं, he is mentioning this in the purport again, that they wanted to usurp it, मतलब they छीन लेना चाहते थे because of लोभ. He is actually clearly saying they were doing it because of the लोभ. And if you think in Bhagavad Gita, काम एश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव. अब ये कहाँ से आता है? काम एश क्रोधेश रजोगुण. रजोगुण क्या होता है? मोड ऑफ पैशन. अब these guys were either in mode of ignorance or mode of passion, Duryodhan and party, and because of that they did not know. Knowledge is very easy to be gained, and knowledge आती है, उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो भी बड़ा आसान हो जाता है इफ यू आर इन सतोगुण. आपने देखा है व्हेन वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इट्स इजियर. हमारे मम्मी पापा भी बोलते थे कि सुबह सुबह उठ के पढ़ो, रिवीजन सुबह करना चाहिए, याद रहेगा. वाई? बिकॉज वी आर इन ए मोड ऑफ गुडनेस. हम लोग थेटा वेव्स, हमारी जो व्हेन वी आर स्लीपिंग ना, वी आर इन ए थेटा वेव्स से हम लोग बाहर आ रहे हैं ना, अल्फा वेव पे. तो हम थीटा वेव में हैं, तो क्या होता है बड़ा अच्छा सा, बिकॉज वी हैव फुली रेस्टेड, आवर सोल हैज dreams and all those sort of things, so we are in a different world, so all these things are gone. So when we get up, we are actually really fresh. It's like a reset button है. जैसे ही हमारा reset होता है, it's easier for us to grasp. So when we are in a mode of goodness, when we read, that's why it says as soon as I wake up, we are not supposed to look at our phone. ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या है, शिला प्रभुपाद का एक वो बॉक्स है जिसमें शिला प्रभुपाद के 1000 या 1000 के करीब लेक्चर्स हैं. उसको मैं कान में लगा लेता हूँ, बटन दबा के उसको कान में लगा लेता हूँ. सो फर्स्ट थिंग आई वांट टू हियर इज व्हाट आई वांट टू हियर शिला प्रभुपाद्स वॉइस, है ना. Not because it's purifying, and plus it's knowledge, because right now I'm in a mode of goodness. I want to hear something, and when you hear in a mode of goodness, that knowledge you are able to apply in your life a little bit easier. Now what happens is, when that mode of goodness थोड़ा सा कम हो जाता है, mode of passion बढ़ जाता है, what happens is same knowledge when you hear, because mode of passion में क्या हो जाता है, आपका attention span कम हो जाता है, because you want to just do. तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा सुबह इफ यू पुट मेरे साथ तो बहुत होता है, व्हेन आई एम पुटिंग ऑडियो या वीडियो ऑन इन द मॉर्निंग, मैं उसको नॉर्मल स्पीड पे सुनता हूँ. जैसे जैसे मैं मिड डे आ जाता हूँ, मिड डे पे अगर मैंने कुछ चलाया, आई विल प्ले इट ऑन 1.5 टाइम्स और टू टाइम्स, बिकॉज जल्दी जल्दी दो यार, मेरे पास अटेंशन स्पैन नहीं है. आई वांट टू हियर इट क्विकली, आई वांट टू गेट एवरीथिंग डन क्विकली, सो दैट वी आर इन ए मोड ऑफ पैशन. मोड ऑफ पैशन इज लाइक एक्शन एक्शन एक्शन. उसमें क्या होता है, बिकॉज वी आर एक्शन ओरिएंटेड, द नॉलेज इज एक्चुअली नॉट एक्शन. नॉलेज इज एक्चुअली ए प्रीकर्सर ऑफ एक्शन. व्हेन यू आर एक्शनिंग, उस वक्त नॉलेज आपके हो जाएगी, बट यू वोंट बी एबल टू गेट. सो इट इज एक वेरी वेग फिगर दिया गया है. इन द मॉर्निंग इफ यू कैन एक्चुअली एक्सेप्ट और यू कैन अंडरस्टैंड 40% ऑफ व्हाट यू हियर. Afternoon you can understand around 20%. In the night you can only understand probably 1 2 3%, this is a normal thing. Understand means you can have actionable knowledge. So जब जो ये थे, क्या बोलते हैं, पांडव कौरव थे, देवर इन मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस. सो इनके पास भी नॉलेज मिल रही थी. विदुर वाज टेलिंग देम, भीष्म पितामह वाज टेलिंग देम, समटाइम द्रोणाचार्य वाज टेलिंग देम, ऑल ऑफ दीज पीपल, कृपाचार्य, एवरीवन वाज टेलिंग देम, बट नथिंग वेंट इन बिकॉज ऑफ वन थिंग. They were fully on mode of passion, and that is why all they wanted to do is they wanted to do one thing, take away everything. Because क्या हुआ, पैशन से क्या हुआ, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी. बुद्धि काम नहीं कर रही थी तो इंस्ट्रक्शन उनके पास नहीं आ रहे थे. इंस्ट्रक्शन उनके पास नहीं आ रहे थे तो उनका जो लोभ पहले का था वो या तो बढ़ रहा था, क्योंकि उनको जो चाह रहे थे मिलता जा रहा था, और या तो नहीं मिल रहा था तो गुस्सा आ रहा था. क्रोधत भवति सम्मोहा, है ना, क्रोधात भवति सम्मोहा. क्रोध से क्या होता है, आदमी सम्मोहित हो जाता है. एंड दे वर सम्मोहित, एंड दैट इज व्हाई दे वर रेडी टू डू एनीथिंग रॉन्ग.
है ना। अब शिला प्रभुपाद देखो इसमें कितना अच्छा बता रहे हैं कि देन ही हु इज ही, युधिष्ठिर महाराज, he fought therefore for the right cause under the guidance of Lord Shri Krishna. This is the essence of the whole thing. When we do anything with the guidance of the Lord, it has to be right. Nothing. We don't have to use our brain. Ki, and we know very well there was a time when Yudhishthir Maharaj भी एक बार he did not follow Krishna because जब अश्वत्थामा को गलत बोला था ना, अश्वत्थामा मर गया. There was a time when even Yudhishthir Maharaj said, no, no, I'm not going to do it. I'm not going to lie. Even Krishna was saying, please do it. He said, no, I'm not going to lie. Because he hesitated of lying. That's why उनका जो रथ था जो जमीन से ऊपर चढ़ता था उसके बाद वो नीचे आ गया. Because he hesitated, because that was adharma. Saying no to what Krishna wants is adharma. And that is why, even though he was Dharmaraj, that's why he was chosen. Dharmaraj was chosen. Ki even if Dharmaraj thinks it's wrong, but Krishna says it's right, it is right. So जो धर्मराज है उससे भी ऊंचा कौन है? उससे भी ऊंचे कृष्ण है, उससे भी बड़ा है. So धर्म का मतलब ये नहीं कि जो एक्सपर्ट हो वही कर सकता है. No, no, no. The expertise is nowhere as compared to the real person. Krishna is saying it, you do it. है ना. Now अब उन्होंने क्या फाइट करी? राइट कॉज के लिए. बट ही कुड नॉट एंजॉय द रिजल्ट्स ऑफ हिज विक्ट्री बिकॉज हिज कजन्स वर ऑल किल्ड इन द फाइट. यार ये क्या उनको पता नहीं था क्या? ही डिडंट ही नो दैट आइदर ही हैज टू डाई और हिज कजन्स हैड टू डाई? उनको पता था. देन व्हाई इज इन रेमेंट? कोई बता सकता है? कैन जस्ट टेल मी व्हाई डू यू थिंक ही क्राइड व्हेन ही न्यू दैट one of them will die? Why is he crying? What is the reason for his crying? We discussed it, but I want you to link it. Why did Yudhishthir Maharaj crying? है ना? He could not enjoy it because his cousins were killed. So out of compassion, Yes, absolutely right. Out of compassion, and compassion is one of the qualities of the Vaishnavas. So because he was a Vaishnava, he knew that they will be killed. He knew. उसको पता था. लेकिन compassion तो नहीं जाएगा ना. Just because he knew doesn't mean that uh, he will not be sad. जैसे कई बार हम लोगों को अपने बच्चों को थोड़ी सी सजा देनी पड़ती है. वी फील सैड, है ना. सजा इन द सेंस, बेटा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है एंड यू इसको देखा बाहर, स्कूल के बाहर, अंदर रो रहा है बेचारा. तो ऐसा नहीं लगता अरे यार क्या यार लेके जाओ इसको, घर ही होम स्कूलिंग करा देंगे, होता है ना ऐसा. लेकिन हम लोग नहीं करते ऐसा. क्यों? बिकॉज uh, because we need to do the right thing. Compassion will not go away even if you are the cause of that misery. सामने वाले की जो मिजरी है उसका. अब बच्चा है, बच्चे को हम लोग वो सुई लगवाने के लिए ले जाते हैं, टीका लगवाने के लिए. ही और शी क्राइज, है ना. हमें दर्द होता है उसके उसके रोने से, बट वी डू इट बिकॉज दैट्स द राइट थिंग टू डू. कंपैशन फिर भी है, फिर भी हम उसके सुई लगवा रहे हैं. दैट डजंट मीन कि वी आर नॉट कंपैशनेट. So he killed those Kauravas because he knew that is the only cure for them. अगर वो नहीं मारते, they would have actually done more damage to their own self, because उससे क्या होता है, उनको और बुरा कर्मा मिलता है. And that is why he therefore ruled over the kingdom as a matter of duty. And this is the mood of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada का भी मूड यही है. एंड यहाँ पर अपने युधिष्ठिर महाराज का भी मूड यही है ना. ही डिड इट मैटर ऑफ ड्यूटी एंड द इंक्वायरी वाज इंपॉर्टेंट फॉर शौनक ऋषि. नाउ व्हाई वाज द इंक्वायरी इंपॉर्टेंट? To know about the behavior of Maharaj Yudhishthira when he was at ease to enjoy the kingdom. Now he can enjoy, but they knew that he's not going to enjoy, and they're asking them क्या करा उन्होंने, महाराज युधिष्ठिर ने क्या करा. And they just want महाराज युधिष्ठिर टू बी ग्लोरिफाइड. अभी हमने भीष्म पितामह की ग्लोरिफिकेशन देखी थी, युधिष्ठिर महाराज की भी देखी थी पहले. यहाँ पर they want to know more about Yudhishthira Maharaj, because not Yudhishthira Maharaj, they actually want to know about how a devotee reacts and what is the essence of a devotee ruling a kingdom.
after doing everything so called which is adharmic, you know. So we discussed, I'll just recap. We discussed how do we know what is right and wrong. We discussed um, why Yudhishthir Maharaj was considered to be a Dharmaraj, and even Dharmaraj, being Dharmaraj, it is not good enough just being Dharmaraj. If you do not follow exactly what Krishna says, then even if you are Dharmaraj, it does not mean anything. Okay? And उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि the right cause under the guidance of Lord Shri Krishna, once we are under the guidance of Lord Shri Krishna, there is nothing right and wrong. It's always right, only right. And we discussed that mode of passion always is sorry, the knowledge is better in the mode of goodness than mode of passion, and then mode of ignorance. And then we finally discussed the main reason of Yudhishthira Maharaj was not to enjoy, not to do anything. He was compassionate. He was really sad. Even then, he organized this war and he won this war. Everyone was killed because he was compassionate, and he did it as a matter of duty, not as a matter of sense, not for the sense gratification. We'll stop here. I'm so sorry. I've got few more points, but I don't think we'll do it next Thursday. We'll do it next Thursday. Anybody has any questions, any comments? प्रभु जी एक क्वेश्चन है थोड़ा वर्णाश्रम के बारे में। आप पूछिए ना। प्रभु जी, भगवत गीता में भगवान ने ऐसा बोला है कि हम हमारा जो धर्म है, हमें यानी जो वैश्य होता है उसका धर्म, क्षत्रिय का धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। नो मैटर क्षत्रिय को अच्छी, वो चलो कोई ब्राह्मण है उसको और वो अच्छा शूरवीर है, तो वो उसको क्षत्रिय नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना ठीक है। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तो अभी के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो हम शूद्र है, यानी तो हमारा हमारा हम किस में आते हैं? शूद्र में आते हैं, ब्राह्मण में आते हैं, क्या आते हैं? वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। Actually, Prabhu, it's very valid question. It's not an easy thing for us to understand, but हमें ये पता है श्रीमद् भागवतम से, कलो शूद्र संभवा, कलयुग में everybody is born शूद्र, ठीक है। Now, when we talk about this ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो segregation है, पहले क्या होता था? It was very clear who is brahmana, who is kshatriya. Right now it's not. Like right now, if I'm sitting on a Vyasasana, I am taking the position of a Brahmana. But when I go to work and earn money, then I'm taking a position of Shudra because I'm working for someone else. Okay? So Shudra क्या होता है? Shudra is working for someone else. Kshatriya, I have, I don't have Kshatriya quality, but if there is a dog coming and trying to, bite my son, I will start fighting with him. So I have to take a पोजिशन ऑफ ए क्षत्रिय। सो अभी क्या हुआ है, वो जो सेग्रीगेशन जो पहले हमें बहुत अच्छे से दिखती थी, अब नहीं दिखती है। भगवत गीता में एक वर्स है जो ये बताता है, इट इज बेटर टू डू आवर ड्यूटी इनपरफेक्टली देन ट्राई एंड डू समबडी एल्सेस ड्यूटी परफेक्टली। ठीक है ना? ये जो वर्स है ये बहुत ही, इसका इसका जो मीनिंग है, इट इज वेरी वेरी डीप मीनिंग। वो ये है कि एक्चुअली हमें ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल, don't think of it as a Brahman Kshatriya. Let's talk about qualities, just qualities. For example, I am not very good in singing. ठीक है? तो I should not try and learn singing and become better singer. है ना? I am very good at taking guidance, directions. So आपने मिथुल को आपने देखा होगा, when I do kitchen service ना, kitchen में I do cleaning and all those sort of floor cleaning, utensil cleaning, ये सारी चीजें जब मैं करता हूँ, I'm good at that because I need specific instruction, I can do it. So it is better for me to do what is my propensity. My propensity is not to sing. It's not my art. So what I should do is I should stay here. सिमिलरली अपने जगन्नाथ राम प्रभु हैं, जगन्नाथ राम प्रभु को अनिरुद्ध प्रभु ने एक बार क्या बोला, जगन्नाथ राम प्रभु ना किचन में सब्जियां काट रहे थे,
बट बिकॉज ही इज नॉट वेरी गुड इन कटिंग वेजिटेबल, उनको बोला अनिरुद्ध प्रभु ने, बोले जगन्नाथ, व्हाई यू डूइंग दिस, like you are preacher, you should spend this time in learning more so that you can preach more. जो तुम्हारे बस की चीज नहीं है, ये जो तुम इतना कचरा यहाँ पर कर रहे हो और ये सारा धीरे धीरे काम कर रहे हो, इससे बेटर है कि यू प्रिपेयर समथिंग टू प्रीच, बिकॉज दैट्स योर, you're good at that. So हम सबको we have to find out what we are good at, है ना, in seva. And some people are really good at, like, because some people are really good at connection. Like for example, आपके Sumit Prabhu and Priyanka Mataji, they are very good in connecting with people because they are very good in maintaining those connections. For example, every week call करना, इतने लोगों को call करना, उनके साथ घूमने जाना, ये करना, आप लोग भी करते हो. You guys are good at that. I'm not very good at that. And plus, I don't have bandwidth as well. And I'm not very good at that. Don't have an bandwidth. So हमारा क्या करना चाहिए? Find out what is my propensity, what am I good at, and work on that and create a difference in that. And in that respect, we can understand it. But when it comes to varnashram, whether we are brahmana, shudra, vaishya, like for example, if I'm born in a family जहाँ पर business होता है, जैसे मेरे daddy, he was in army. So army is actually Kshatriya. But my dad was in armed medical corps. So he was actually a Brahmana, because Brahmana is like Ayurvedic होते हैं ना, वैद्य. He was not a Vaidya, but I'm just saying he used to carry people from, like, his job was to get people who are injured in the battlefield, carry them and bring them back to the tent and patch them up so that they can survive until the medical, उनको कोई medical help मिले उस तब तक. So he was in armed medical corps. So his job was Kshatriya and Brahmana together, है ना. तो अभी सेग्रीगेशन बहुत मुश्किल हो गया है. जो लोग सिर्फ आर्मी में हैं, they are actually doing a duty of क्षत्रिय. Some people who are actually in administrative, for example, हमारे जो ये है नेता हैं, they are supposedly क्षत्रिय as well. They're not just fighters, they're administrators, they're क्षत्रियस, है ना. फिर हमारे अंबानी वगैरह ये सारे के सारे, these should be वैश्यस, है ना. And people who are working for them, just like जो भी job कर रहे हैं, they're all shudras. Like maybe doesn't matter whether you're CEO of a bank or you're a chaprasi of a bank, you have the same. You're both shudras, because shudra means you're working for someone else. You're not doing business. You're getting salary, and that means you're shudras. है तो ना? तो प्रभु जी, इसका मतलब ये हुआ कि अभी अभी के हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है। तो यानी पास्ट में, यानी द्वापर युग थे, त्रेता युग, सतयुग था, तो उस टाइम में जो ब्राह्मण होगा और ब्राह्मण के घर में जो भी पैदा होगा, जरूरी ये नहीं हो ब्राह्मण, लेकिन उसके पास क्या होगा, उसके पास एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि ही कैन बिकम ए ब्राह्मण. तो ओके। पहले क्या होता था, लोगों को, बच्चे को ये नहीं बोला जाता था कि व्हाट डू यू वांट टू बी. तो आपको पता है, देयर इज अ संस्कार जहां पर वो क्या करते थे, छोटा सा बच्चा होता था 5-6 महीने का, तो उसके सामने ना बुक्स रख देते थे, अस्त्र रख देते थे, इस तरह चीज रख देते थे, तो वो जिस तरह जाता था उसको, उनको समझ में आता था इसकी ये प्रोपेंसिटी है. फिर उसमें उसको ट्रेन किया जाता था. ठीक है. ओके। तो तो जरूरी नहीं है ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण हो. ओके। तो हाँ, ऐसा कभी कभी ज्यादातर हो जाता था, क्योंकि ब्राह्मण के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है, ही इज ऑलवेज हियरिंग, उस मोड ऑफ गुडनेस है सारा. सो ही इज ऑलवेज हियरिंग वेद और समथिंग, एंड ही इज लाइक, पीपल यूज टू गिव देम लॉट ऑफ गुड कल्चर एंड थिंग्स लाइक दैट. सो देर वाज अ पॉसिबिलिटी दैट अ brahmana, when he is conceiving, a soul which is supposed to become brahmana will be born, and then eventually he will become brahmana because he's got brahminical qualities. बट हमारे शास्त्रों में लिखा है दैट इज नॉट द क्राइटेरिया टू बिकम ब्राह्मण, जस्ट टू बी कमिंग आउट ऑफ द वूम ऑफ अ ब्राह्मण. पहले क्या होता था, ब्राह्मण भी ये करते थे, गर्भाधान संस्कार होता था. सो व्हेन दे वर इन्वोकिंग द बच्चा वूम में, what they were doing is they were inviting a soul which is pious and things like that. And if a, और वो, क्योंकि एक सपोज एक बच्चा है जिसको ब्राह्मण के घर में पैदा होना उसके कर्म के हिसाब से, and these brahmanas are really good brahmanas and they're invoking, they're doing this गर्भाधान संस्कार, तो कर्मा के हिसाब से वो बंदा इनके घर में पैदा होगा, and it is easier for him to become brahmana because उसका environment ब्राह्मण वाला है ना. और प्रभु जी, अगर वो क्षत्रिय बन जाए उस टाइम की बात के, हाँ तो तो क्या कोई तो दिक्कत क्या तो इस भगवत गीता से हिसाब से
ये तो गलत हो जाएगा ना उसके लिए, कि क्या होगा, क्योंकि नहीं नहीं, क्योंकि तो सुनो सुनो, तो यही था है। तो ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द बर्थ, इट्स बिकॉज ऑफ द कर्म। सो कर्म। है ना। तो भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के हिसाब से विभाजन। तो पहले क्या होता था कि जब कोई बच्चा शस्त्र उठा लेता था ना, सो दे यूज टू सेंड देम टू गुरुकुल, एंड उसको बोलते थे कि इसने शस्त्र उठाया था तो देखना शायद इसमें प्रोपेंसिटी उसकी है, and then eventually he will become a kshatriya. So there was not necessary, it's not necessary। ओके। वो तो हम लोगों ने बाद में कर दिया कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो उसको पूछते कौन हो, भैया मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण का बी भी नहीं पता है लेकिन वो ब्राह्मण है ना। समझ गया प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, चलो। एनीबडी एल्स? ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमांत कोटि वैष्णव वंदे की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण, की जय। जय हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।